If you are learning numbers, then you should know the very easy method of the counting so that it will make your numbers to calculate very easy way. So let's see the count method. As you are learning the counting method, so you should have some objects or a number to count the method or to count the values. So right now you have some images of the cars, or you can say they are some vehicles, but they are scattered and it won't make easy to count. So just to make your work easy, that will help you to calculate the numbers or the objects in very easy way. So you need to follow some rules. So let's see what are the rules to make the easier calculation. अब अगर आप नंबर सीख रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन करने के लिए वो बहुत इजी मेथड होना चाहिए जो कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं या फिर कोई नंबर चाहिए होता है, तो ही फिर आप उसका काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक इमेज है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं या कार्स है, आप कह सकते हो। ओके, सो कैन यू काउंट? क्या आप उसे अब काउंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत स्कैटर्ड है, मतलब बहुत सारे हैं और आपको पता नहीं है नंबर एग्जैक्टली कितना है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। सो चलो देखते हैं वो रूल्स कौन से हैं। सो नाउ फॉर द काउंटिंग यू नीड टू फॉलो द काउंट रूल, एंड दैट इज you have to make groups that is having 10 objects. So here I have made the groups of that vehicle or the cars which you have seen before the image. So here I grouped them into the number of 10 objects, and then later on remaining also you have to count and group them, and if any individual cars or vehicles are left, then you have to make it a separate group of it. अगर आपको अभी काउंटिंग करना है, सो काउंटिंग का रूल क्या है कि पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिया है उसको आपको क्या करना है, 10 के ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना है। सो यहाँ पर मैंने आपने जो कार्स देखे थे उसको पहले मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया जिसमें 10 कार्स है, और अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ और कार्स रह जाते हैं तो आपको उनको भी ग्रुप करना है। अगर वो नंबर 10 में है तो फिर से एक ग्रुप बना लो, और अगर 10 में नहीं है, 10 से कम है, तो फिर उनको इंडिविजुअल काउंट करना है। सो इस तरह से आपके पास जितने भी ग्रुप्स बन सकते हैं 10 के, तो उतने ग्रुप्स बना लेना है, और बाद में जितने भी इंडिविजुअल्स बच जाते हैं उनको सेपरेट ग्रुप बना के उनका सेपरेट काउंटिंग करना है। नाउ फॉर लर्निंग द काउंटिंग मेथड यू हैव फॉलोड द रूल ऑफ काउंट। सो you separated the objects and made a group of 10 objects, and the remaining individuals were left, that also you counted. But in maths you need to place these objects, or you need to give them values. So for that you need a place value chart, and what is that? That is having the places of tens and ones. So here we are having 2-digit number. How you get that 2-digit number? Because when you group the objects,
then you get the number 23 from the previous image. That is, when you group the cars into the 10 objects and you made it in a single group. So according to that, you had 2 groups and then 3 cars were individually left. So according to that counting, you get the number 23, and that 23 you need to represent or you need to place in the place value chart. So after counting, you get 2 groups of 10 objects, and that's why the 2 number is placed under the tens column, and 3 cars were left individual, which you counted it separately as a 3 object. So that's why we placed that 3 number in the column under the ones column. अब आपने तो काउंटिंग कर लिया है, रूल फॉलो कर लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, जो कार्स की इमेज दी थी उनको 10 का एक ग्रुप बना लिया। तो इस तरह से आपके पास जितने भी कार्स थे उतना का आपने 10 का ग्रुप्स बना लिया। और जो भी कार बचते हैं उनका भी एक सेपरेट इंडिविजुअल ग्रुप बना लिया। उस तरह से आपके पास 2 ग्रुप्स बन गए थे जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। इसलिए हमने 2 नंबर क्या किया, टेंस के कॉलम में वैल्यू प्लेस की, और जो 3 इंडिविजुअल आपने ग्रुप बनाया था कार्स का, वो कार्स के ग्रुप का जो 3 वैल्यू आती है वो वंस के कॉलम में आपने क्या किया, प्लेस किया। ये प्लेस क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर काउंटिंग करने के बाद मिलता है मैथ्स में उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और इसलिए वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है। नाउ सी can be easy method to count when any objects are given you for the counting. So you can group them into the 10 of object and make a groups out of it, and then you can add the objects. But what if you don't have an objects, or if the objects are not given to you for the counting? Instead of objects you get a number. So what you will do, it is not an easy task. So for that you need to apply the same count rule, but the representation will be the different form, and that will be the process of the abacus counting. So you will be representing the given number in the process of abacus counting with the help of abacus tool. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिया जाए काउंट करने के लिए तो वो बहुत इजी हो जाएगा कि आप तो इजीली ऑब्जेक्ट्स को 10 का एक ग्रुप बना लिया, सेपरेट कर लिया, और ग्रुप्स बना लिए 10 का, सेपरेट कर लिया, और इस तरह से ग्रुप्स बना के आपने काउंटिंग कर ली। ऑब्जेक्ट्स नहीं दिया और ऑब्जेक्ट्स की जगह आपको डायरेक्ट नंबर दिया है, और अब आपको बोला है कि टेल व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, हाउ यू विल रिप्रेजेंट दैट नंबर इज़ 23, कैसे आया। सो फॉर दैट आपको काउंटिंग का रूल तो सेम करना है। काउंटिंग का रूल क्या है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी नंबर दिया है उसको 10 में ग्रुप करना है। सो नंबर के लिए भी सेम है कि आपको 10 में ग्रुप करना है, लेकिन आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है
वो डिफरेंट है, वो अलग है, और उसको हमने क्या कहा है, मतलब मैथ्स में एबेकस काउंटिंग कहा है। और वो प्रोसेस कैसा है, वो प्रोसेस आपको एबेकस टूल के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रोसेस भी किस तरह से है। Let's see the process on abacus tool. So in front of you, can you see this? Some bits are arranged in a spike, blue color bits and green color bits, and under that it is written T and O. So that object or that is a abacus tool. So वो क्या है, abacus tool है, जिसमें आप कुछ एक रॉड देख रहे हैं और उस रॉड के अंदर क्या है, कुछ ग्रीन कलर के बिट्स है और कुछ ब्लू कलर के बिट्स है। और ग्रीन कलर के बिट के अंदर टी लिखा है और ब्लू कलर के अंदर क्या लिखा है, ओ लिखा है। सो ये क्या है, एबेकस का टूल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस bits have the value and what alphabets represent. So according to abacus, T represent tens place, O represents ones place, and this each blue color bit have one value. It is counted as 1 each, and the green color bit each is counted as 10. That is, each green color bit has a 10 value. So now you can see separately I have written a note that when you count each one single blue color bit into that one spike under the O, that is ones place. So when you get the number 9 in that spike, then you have to replace those all 9 numbers of bits. That is, you have to remove all the 9 number of bits from the ones place, and a single green color bit is replaced instead of 9 blue bits, and that green color bit is placed in the place of tens value. मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एबेकस का जो टूल है उसका टी का मतलब क्या होता है, टेंस प्लेस, ओ का मतलब होता है वंस प्लेस, और जो ब्लू कलर के आप बिट्स देख रहे हो उनकी एक एक की वैल्यू क्या होती है, 1। एक सिंगल बिट की वैल्यू होती है 1, और जो ग्रीन कलर का बिट है वो सिंगल ग्रीन कलर के बिट की वैल्यू होती है 10। सो इस तरह से अगर आपके पास जो वंस का है, मतलब वंस का जो रॉड है, उसमें जब आपके पास बिट्स कलेक्ट होते हैं जो ब्लू कलर के हैं और उसका काउंट 9 आता है, तब आपको क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू एबेकस आपको क्या करना है, जो 9 ब्लू कलर के बिट्स है उन सब को आपको क्या कर रहा है, निकालना है और उनको रिप्लेस करना है एक सिंगल ग्रीन कलर के बिट से। मतलब आपके पास जब भी 9 काउंट होता है तो आपके पास एक ग्रीन कलर का बिट जो है वो उसकी वैल्यू है 10, और वो आपको क्या करना है, टेंस के प्लेस में या फिर जो रॉड है उसमें आपको वो डालना है। सो इस तरह से आपका ये एबेकस का रूल है। Now let's see
that the process of abacus counting with the help of example. So we know that we have a number 23. So let's represent on the abacus tool the number 23. So when you grouped the objects which were given to you, so according to that you had made 10 objects, one single group. So according to that you had how many objects group? 2 groups. So that's why you will place 2 green single bits under the spike of tens. मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था तब आपके पास 2 ग्रुप्स बन गए थे, इसलिए आपके पास 2 ग्रीन कलर बिट्स आ गए। लेकिन वो कैसे आए? एज अ नंबर अगर आप सोचते हैं तो जब आप ब्लू कलर के बिट्स एक एक करके डालते हैं ओ स्पाइक में, तब आपके पास 9 अरेंज होता है, ठीक है, 9 ब्लू बिट्स बन जाते हैं। तब जाकर आपको वो क्या करना है, वो सारे 9 बिट्स ब्लू कलर के हैं वो निकालना है ओ के स्पाइक से, और फिर एक ग्रीन कलर का बिट डालना है टी के स्पाइक में। सो इस तरह से पहले आपके पास एक टी के अंडर ग्रीन कलर का बिट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू रहेगी 10। सो 23 आपका नंबर है। 23 में से अगर 10 को निकाला तो कितने बच जाते हैं? 13। सो अब इस 13 को आप कैसे रिप्लेस करोगे? तो आपको फिर से क्या करना है, ओ स्पाइक में ब्लू कलर के बिट्स आप डालते जाओगे। तो आपके पास जब 9 काउंट आ जाएगा फिर से आपको क्या करना है, वो सारे ब्लू कलर के जो बिट्स है जो आपने ओ के अंडर रिप्लेस किया है उसको निकालना है, और फिर आपको दूसरा ग्रीन कलर का बिट है वो आपको टी के स्पाइक में डालना है। तो इस तरह से आपके पास कितने ग्रीन कलर के बिट्स बन गए? 2, और 2 बिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। लेकिन आपका नंबर है 23 के 20 को 23 से डिडक्ट करोगे तब आपके पास क्या नंबर बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो अब ये 3 नंबर को आप फिर से क्या करोगे, ओ स्पाइक के अंदर आपको ब्लू कलर के बिट्स डालने हैं। तो वो कितने डालोगे आप? 3 डालोगे, क्योंकि आपके पास सिंगल इंडिविजुअल नंबर 3 बच गया है और इसलिए आप 3 बिट्स डालोगे, तब आपके पास 3 ब्लू कलर बिट्स। Now you get 2 green color bits under the tens place, 3 blue color bits under the O spike. So in this way we know that how we get, because 10 ones is equal to 1 tenth, and according to that we have put the 2 green bits in 10 spike and 3 blue color bits in O spikes, and so we can represent this number 23 on this abacus tool. So this was the all representation of the number 23 on the. I think I have cleared the topic. I hope you must have liked this video. So subscribe my channel and like my videos to get the latest video. Thank you.